ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಹಾಟ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10th ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಜೈನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋರು ರಿತೀಶ್ ಜೈನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ TIME ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಸಂಘಟನ್. ಇವರು ಈ ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आप देखते ज्यादा हो, सुनते ज्यादा हो. See more, right? Because I said touch your cheeks and you have done like this, right? So you see more. अच्छा, कभी आपने कोई 2-wheeler चलाया है, इंक्लूडिंग साइकिल? Someone is a pillion rider, आपके पीछे बैठा है और वो पीछे वाला बोलता है टेक लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. कौन सा हाथ है ये? और उसने क्या बोला? टेक लेफ्ट 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 लेफ्ट. तो क्या करोगे? राइट लोगे, लेफ्ट लोगे? किसी ने कहा वो देखो वो राइट में वीडियो कैमरा वाले भैया हैं. तो राइट में लेफ्ट में? इसका मतलब जो आप देखते हो वो ज्यादा सही है या जो सुनते हो वो ज्यादा सही है? देखते हैं. तो आज के बाद कैसे मेमोराइज करोगे? देख देख कर. लेकिन जो चीजें देखी नहीं जा सकती वो कैसे मेमोराइज करोगे? इमेजिनेशन से. इमेजिनेशन कैसा होना चाहिए? ब्राइट होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, हाई डेफिनेशन होना चाहिए, राइट? 1056 कलर्स होना चाहिए, 258 नहीं चलेगा, राइट? जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा उतनी अच्छी आपकी मेमोरी होगी. सो शैल वी स्टार्ट द टेस्ट? How many of you want to participate? Please raise your hands. Everyone want to do it? Sure, pakka. Okay, I'll give you the rules. There are 3 rules. Rule number 1 is I will give you unconnected random 20-25 words, right? And I will give all these words only once. No one will ask me to repeat it. Are you ready? Yes. Second is no one will write anything. Third is not only you need to remember all those words, but you need to remember them in the same sequence. Okay, so are you ready? If you could recall all these words, your memory is good. And if you are not able to do it, your memory is bad. Sure, go ahead. Chalo. To inspire the students to become a good citizen and intelligent of this Davangere city also. I grateful to this great personality, and I recommend our management to invite again and again to this institution to inspire all such you like this. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I request Sri Ashok Kumar Jain, State Minority Head of Bharatiya Jain Sanghatan, Karnataka, to speak a few words. Respected sir on the dais, Sri Ritesh Jain ji, Principal of Jain Vidyalaya Shri Parmeshwarappa ji, and our previous President Sri Ashok Kumar Jain, and all the parents, students, and media persons. I feel proud to get this program to Davangere and have all of you with us to have this career guidance program. Today, we feel proud that we got Ritesh Jain from Delhi for our children to have a discussion and have a road map for their life. This career guidance program was very important for our children and also for the parents. We have seen that after the SLC, our parents were hovering where to send our children. And even students were hovering whether I have to take commerce, whether I have to take science, where I have to go. So this is the route map and this is a mark to settle our life and future. So I am very much thankful to Ritesh Jain for coming from New Delhi. He started day before yesterday from New Delhi and till now he was continuously traveling to Davangere to give us this extraordinary program. I am thankful to you sir for
coming to Davangere and giving us this career guidance program. Thank you. Thank you, Nikhil. It's really a great privilege and joy, of course. In fact, I would say it's kind of gaining your knowledge, and really, we are really thankful to Mr. Ritesh Jain, who have come all the way from Ghaziabad. He is the director of Time, and I think he has come from New Delhi. I just come to know, and a vote of thanks to all those who have contributed in one or way or other to make this seminar workshop a success. First of all, as I said, I would like to thank Mr. Ritesh Jain, Director, Time, Ghaziabad. I request him to receive a token of love and respect from our BJS team, that is Bharatiya Jain Sangathan team. Please take this award. ಭಾರತ ಜೈನ್ ಸಂಘಟನೆ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಯಾಗಿ रितेश जैन सर गाजियाबाद ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. सर नमस्ते. नमस्कार. हाँ सर, ये जो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है. यहाँ पे क्या है, बच्चों का 10th के बाद उनका फ्यूचर के बारे में डिस्कस हो रहा था. इसके बारे में क्या बताते हैं चंद? 10th के बाद बहुत ही सही समय होता है बच्चों को अपने करियर के चुनाव का. यदि हम बच्चों को सही ढंग से गाइड नहीं करते तो बच्चे अपने पेरेंट के प्रेशर में आकर गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं. और उसके बाद क्या होता है वो आपने देखा होगा कोटा के केस में. हर साल हजारों बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने करियर का गलत चुनाव किया है. उस समय बहुत सारी काउंसलिंग दी जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को साइकोलॉजिकल एनालिसिस दिए जाते हैं, किंतु भारतीय जैन संगठन ने ये अपना बीड़ा उठाया है कि हम उस बच्चे को तब नहीं समझाएंगे जब वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है, परंतु हम उसको समझाएंगे जब वो कक्षा 9 में है और कक्षा 10 में है. यदि बच्चा खुद अपनी इच्छा से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने करियर का चुनाव करेगा तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि कभी भी वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा. वो अपने समाज का नाम रोशन करेगा, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगा. सर अब तो ऑल इंडिया में मेरे को लगता है इंडिया और इंटरनेशनल में भी ये जो कदम उठाया है, यहाँ पे जो इंडिया के बच्चे के बारे में और उनका लक्ष्य के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इंडिया के बच्चे बहुत ही होनहार हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, लेकिन जब तक वो इस नॉलेज से इक्विप नहीं हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएं कि वो जो करना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा है बजाय उसके कि जो उनके पेरेंट्स उनसे करवाना चाहते हैं. लेकिन वो जब बच्चों को ये कहते हैं अपने पेरेंट्स को मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो पेरेंट्स नहीं मानते. लेकिन जब हम उन बच्चों को ये सिखा देते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को घर जाकर कन्विंस कर पाते हैं कि पापा मैं ये बनना चाहता हूं. और ये सुनने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को सहयोग करते हैं. और जो नहीं भी करते हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है उन पेरेंट्स से कि आप सोचिए उन बच्चों के भविष्य के बारे में और कुछ भी हो जाए प्लीज डू नॉट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. सर एक्चुअली ये जो मुद्दा उठाया है आपने बहुत अच्छा मुद्दा है और भारत के जो बच्चे में है इसमें कमियां और उसमें जितना भी टैलेंटेड है इससे हमको पता चलता है. और मेन सर हमारे जो व्यूअर्स है इनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आप अपने बच्चों की एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई की एजुकेशन तक सीमित ना रखें. बच्चे से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कल वो अच्छे नागरिक बने, वो अच्छा व्यवसाय करें, वो अच्छे पति बने, वो अच्छी पत्नी बने, तो आप उन बच्चों की शिक्षा को
एक पूरे व्यू में लेकर देखिए। और जितने भी कार्यक्रम खास तौर से हम भारतीय जैन संगठना के माध्यम से कराते हैं, हम EOG का प्रोग्राम कराते हैं, लड़कियों को कैसे आगे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपने परिवार को भी लेकर चलें और अपने करियर को भी लेकर चलें, एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स के प्रोग्राम हम सिखाते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो हम कराते हैं, आप प्लीज़ उन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करिए, अपने मिलने जुलने वाले और अपने परिवार के लोगों को मोटिवेट करिए कि वो इन कार्यक्रमों में आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। भारतीय जैन संगठना का एक ही उद्देश्य है कि हम इस समाज को बेटर प्लेस बना दें। जय जिनेंद्र। ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಅದು ಕೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ರಿತೇಶ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ फीडबैक तोड़ना बन्नी. हेलो सर. हेलो. नमस्ते सर. अभी आप इसके जो प्रोग्राम हुआ है आज बहुत अच्छा हुआ है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक बताना चाहता हूँ कि बहुत बार एक कन्फ्यूजन हो, जब हमारे हम टॉकिंग अबाउट 15 साल पुरानी बात करता हूँ, 10th और 12th स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास एक गाइडेंस नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए. लेकिन आज जब मैं रिसर्च कर रहा था और जब सर के बारे में पढ़ रहा था, मुझे एक बात पता चली कि मार्केट में देर आर रेडी टू सर्व 3600 कोर्सेस आर अवेलेबल. ओके, तो ये अभी ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए बढ़ता जा रहा है. जो आज का कार्यक्रम हुआ है, ये एक बहुत ही मोटिवेशन स्टूडेंट्स को मिला है, एक करियर में गाइडेंस की तरह मिला है कि आगे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहते हैं. एक सोच खुली है कि आगे उनको एक विंडो बोलते हैं ना, जिंदगी का एक विंडो खुल गया है कि उनको आगे क्या करना है. तो ये कार्यक्रम के माध्यम से रितेश भाई ने जो बताया कि टोटल जो करियर गाइडेंस के रिलेटेड हो या बेसिक मिस्टेक्स हम जहाँ के कर रहे हैं, और एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि एक फैशन बनता जा रहा है कि जो मेरा नेबर कर रहा है वो मुझे करना चाहिए, ये गलतियां जो हम कर रहे हैं, उस गलतियों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं. करियर को बनाना है तो करियर को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. यही सबसे बड़ा एक फीडबैक मैं देना चाहूँगा और इनके आज इस कार्यक्रम में सीखने को मिला है. तो दिस व्हाट आई वांट टू से. ಇದೀಗ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ಸಂಸ್ಥೆಯ अध्यक्षराದಂಥ अशोक जैन सर नಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. सर नमस्ते. नमस्ते सर, कैसा लग रहा है जो रितेश जैन सर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इन्होंने बहुत अच्छी तरह बच्चों को समझाया कि कोई भी आप IAS है, अभी नासा में जाना है तो कितनी इजी वे में आप जा सकते हैं. मीन्स वो टफ़ नहीं है, आप सोच के बैठे वो टफ़ है. मीन्स आप बाहर निकलेंगे ना तो वो स्टेप एक आगे रखेंगे ना तो बहुत इजी है सब कुछ. इन्होंने जो IAS का बताया है, नासा में कैसे एग्ज़ाम देना, कैसे कोर्स करना और कहाँ से प्रिपरेशन करना, ये सब इतनी सिंपल वे में बताया. अभी सब मेरे ख्याल से बहुत एम्पावर हुए होंगे बच्चे. यानी टोटली आज जो प्रोग्राम चला है बढ़िया चला है बोल रहे हैं आप लोग. सर, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए वही कि आप सोच के घर में मत बैठिए, बाहर आइए. मीन्स ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स हो तो आप वॉलंटरी आइए. हम लोग कोई भी इंतज़ार मत कीजिए कि आपको बुलाना आएगा, ऐसा नहीं है. आप सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे पर्सनल लाइफ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक के लिए कर रहे हैं सब कार्यक्रम. तो आप सब बाहर आइए करके. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ್ ಜೈನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಭಾವನಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಿತೇಶ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅದು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಜನ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೂ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ದಿನದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ
ಈ ದಿನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೂ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ. 2 ಮಾತು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇವರು ಸೂಕ್ತ ವೇಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು? ಯಾವುದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮದು ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. नमस्ते सर, ये जो भारतीय जैन संगठन है इसकी स्थापना कब हुई और कैसे हुई और क्या लक्ष्य रख के आपने किया था सर? सर, भारतीय जैन संगठन हमारे अध्यक्ष शांतिलाल जी मुथा ने 1985 में 1985 में एक बड़ी ऊंची सोच रख के इस संस्था की स्थापना पूना में की. हमारे हेड ऑफिस पूना में है. फिर पूना से सारा महाराष्ट्र से आज भारतवर्ष में हमारी संस्था के सारे जगह पे शाखाएं चल रही हैं और हर गांव में शाखा बना के हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ला रहे हैं और हमारे नेशन के लिए सारे जनता के लिए जो उपयोगी कार्यक्रम हो और उनको जो दुविधाएं होती है उस पर रिसर्च करके हमारे रिसर्च की करीबन 350 से 400 मेंबर की टीम जो है भारतीय जैन संगठन के ऑफिस में काम करती हैं. और हमारी संस्था NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल है. हम बिना किसी कोई उद्देश्य रख के हमारा भारत देश के उत्थान के लिए हम काम करते हैं. सर, ये जो संगठन है इसमें जैन बोल के सिर्फ ये जैन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है या सर्व धर्म के लिए भी है सर? हमारी संस्था सर्वधर्मी है और हमारे संस्था में वैसे मेंबर्स तो हम सब जैन लोग हैं, मगर हमारी संस्था पूरे देश के नागरिकों के लिए काम करती है और हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं कि इस नेशन को बिल्डअप करने में सुविधा हो, ऐसे कार्यक्रम लाते हैं. हमारे 3 उद्देश्य से हम काम चलाते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर है, एजुकेशन इनिशिएटिव्स है और जो कहने का मतलब सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो हमारे पब्लिक के लिए उपयोगी हो सके. सर, दावणगेरे में आपके जो संगठन काम कर रही है इसमें कितने लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? इन दावणगेरे के सारे जैन समाज के लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबका साथ हमारे साथ है. और हमारे वैसे 30 मेंबर की टीम चैप्टर बनी हुई है और इसके साथ में हमारी महिला विंग है, यूथ विंग है, वैसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. और हमारी संस्था बिना प्रॉफिट के काम करने की वजह से हम आपस में फंडिंग करके जो भी कार्यक्रम हमारे हैं, रिसर्च कार्यक्रम हैं, उसको पब्लिक में देते हैं. जैसे हमारी संस्था ने ऑलरेडी दावणगेरे में एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स की प्रोग्राम किया था, उसमें करीबन 79 बच्चियों को एम्पावर किया गया और उनका फीडबैक लिया गया कि इस कार्यक्रम से उनको क्या मिला. इसी तरह हमारा एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स जो प्रोग्राम है वो आज ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस 21st सेंचुरी के जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको कैसे चैलेंज किया जाए. और इसी तरह हमारा लास्ट एक प्रोग्राम हमने किया था लिम्ब कैंप, जहाँ पे हमने करीबन 100 लोगों को हाथ पाँव दिए और करीबन 200 लोगों को हमने एसेसरीज़ वगैरह दी. इसी तरह हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स चलते हैं. हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है बच्चों से, जो 4th स्टैंडर्ड के बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं
ये हमारा एक सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में बच्चे की न्यूनता और उसकी स्पेशलिटीज़ जो है उसको हम बाहर ला के उनके पेरेंट्स को एक टेस्ट द्वारा दी जाती है कि बच्चे का जो करियर है, आगे उनका फ्यूचर है, किस में उनकी रुचि है, किस में कमी है, उसका पूरा कर सकते हैं। तो भरण पोषण में वो उनको वहीं से शुरुआत हो जाती है कि 4th स्टैंडर्ड में बच्चे के बारे में ध्यान देना शुरू हो जाए कि उसकी बच्चे में क्या खासियत है, किस पे ध्यान दिया जाए और जो कमियां हैं उसको कैसे पूरी की जाए। और वहाँ से हम चल के 8th स्टैंडर्ड में और एक सैप प्रोग्राम है जहाँ पे उनकी इम्प्रूवमेंट्स और फ्यूचर में और डेवलपमेंट्स उनकी क्या हो रही है उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद हम लाते हैं कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, जो आज आपने देखा दावणगेरे में हमने किया है कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम। इस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम से हम बच्चों को एक वे दिलाना चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं। और आज के अवेलेबल इतने सारे नए कोर्सेस आ गए हैं कि सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। जो नेशन वाइड या इंटरनेशनली जो कोर्सेस अवेलेबल है उनको बच्चों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य था और उनकी कन्फ्यूजन्स को दूर करके उनको एक रूट मैप दिया जाए कि उनके आगे कैरियर कैसे बने, उनकी ज़िंदगी में जो लागू करना चाहते हैं उसको कैसे किया जाए। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम चालू होता है एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, जो बच्चों को सशक्तिकरण करते हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है तो शादी के बाद में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कार्यक्रम है एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स, जिसमें उनके परिवार में कैसा रहा जाता है परिवार में। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ। ನಾನು ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದೇ ಥರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತತ್ಪರರಾಗಿರ್ತೇವೆ। ಇದೀಗ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।